Previous year questions of ESC, UPPSC, AE, SSC, JEE on the topic of open channel flow. So the first question is, what is the depth of the flow in a circular channel of diameter 2 meter for the maximum velocity? Options क्या है? That is 1, 1.62, 2, 2.83. क्वेश्चन पूछा गया SSC 2017 में. So for the maximum velocity के लिए depth of the flow कितना होता है? That is y is equal to 0.8 into 0.81 into d, where capital D is equal to diameter of the circular channel. So diameter of circular channel कितना given है? That is 2 meter given है. So y is equal to, that is depth of the flow, that is 0.81 into 2. So depth of the flow, that is y is equal to, that is 1.62. So the correct option is, that is option B is correct. Next question है, the discharge through a trapezoidal channel is maximum when. Options क्या है? Width of the channel at the top is twice the width at bottom. The depth of the channel is equal to the width at bottom. Sloping side is equal to the half of the width at the top. And the last option is the sloping side is equal to the width at bottom. क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी AE 2007 में. So for the maximum discharge के लिए and through a trapezoidal channel, that is capital T, that is top is equal to 2 times of the side of the sloping side. So that is 2 into y under root 1 plus, that is n square. So that is 2 capital T by 2, that is top width, that is capital T. So T by 2 is equal to y under root 1 plus n square. That means the sloping side is equal to the half of the width at the top. So that is option C is correct. Next question है, a rectangular channel of cross-sectional dimension 15 into 9 meter is running at 1/3. What is the hydraulic radius of the channel? Options क्या है? That is 5, 6.43, 8.95, 10. क्वेश्चन पूछा गया है SSC 2017 में. So यहाँ पे रेक्टेंगुलर चैनल की बात हो रही है and the dimension कितना given है? That is 15 by 9. That is कैपिटल B कितना गिवन है? That is 15 मीटर. एंड द चैनल की टोटल हाइट कितनी गिवन है? That is 9 मीटर. और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि that is running at 1/3, मतलब जो वाटर फ्लो कर रहा है वो 1/3 पे कर रहा है. ठीक है, that is this height is depth of the flow कितना है? That is 3 मीटर. So क्वेश्चन में पूछा गया है what is the hydraulic radius. So hydraulic radius, that is capital R is equal to A upon P, that's area upon perimeter. So area क्या होगा? That is B into y. So 15 into 3 upon, that is and perimeter कितना होता है? That is B plus 2 into y. That is B कितना है? 15 plus 2 into 3. So इसको बेसिकली सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, that is 2.143 मीटर. So यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि कोई भी ऑप्शंस नहीं गिवन है. दैट इज इसमें क्या है कि सारे ऑप्शंस गलत गिवन थे SSC 2017 में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. 1.2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ अ बेड स्लोप 0.0004 and the Manning's coefficient, that is 0.01, carrying a discharge of 0.5 meter per second. The normal depth of the channel is. ऑप्शंस क्या है? 0.13, 0.32, 0.43, 0.5. क्वेश्चन पूछा गया SSC 2017 में. सो यहाँ पे वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की बात हो रही है. ठीक है, नंबर 1. एंड सेकेंड थिंग जो है, दैट इज कैपिटल B कितना गिवन है? दैट इज 1.2 मीटर. एंड द स्लोप कितना गिवन है? दैट इज 0.0004. and the Manning coefficient, that is n is equal to given है, that is 0.01. and discharge कितना given है? that is 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो नॉर्मल डेप्थ निकालना है, that is y आपको फाइंड करना है. सो Manning coefficient, Manning फॉर्मूला क्या होता है? that is v is equal to 1 upon n r की पावर 2/3 s 1/2. सो यहाँ पे बात किया जा रहा है फॉर द वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की. सो वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए फॉर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की जब बात हो रही है यहाँ पे,
तो इस केस में जो हाइड्रोलिक रेडियस होगा वो r के इक्वल होता है, सॉरी हाइड्रोलिक रेडियस कैपिटल R जो है वो y के इक्वल होता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें इट इज 1/n y की पावर 2/3 s 1/2। सो डिस्चार्ज हमको फाइंड करना है, दैट इज q इक्वल टू a इंटू 1/n इंटू y की पावर 2/3 s 1/2। सो एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज b इंटू वाई, वाई अगर यहाँ पुट करेंगे तो दैट इज 1/n और ये y हो जाएगा दैट इज 5/3 s 1/2। सो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, दैट इज 0.5 इज इक्वल टू b दैट इज 1.2 इंटू 1/n दैट इज 0.01 इंटू y आपको फाइंड करना है दैट इज 5/3 एंड s क्या है दैट इज 0.0004 की पावर 1/2। सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू बेसिकली आएगी वैल्यू दैट इज 0.195 मीटर। सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन है, दैट इज ये क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन थे वो सारे गलत गिवन थे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर चैनल will be the most economical when the depth of flow to the bottom width is in the ratio, ऑप्शंस क्या है दैट इज 1:2 1:4 2:1 1:1। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2018 में। सो फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल की कंडीशन होती है दैट इज बी इक्वल टू होती है दैट इज 2 इंटू वाई, दैट मीन्स द विड्थ इज इक्वल टू दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लो। तो यहाँ पे पूछा गया है रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो टू द बॉटम, दैट मीन्स y अपॉन b। सो y अपॉन b दैट इज 1:2। तो दैट मीन्स 1/2 दैट इज y अपॉन b का जो रेशियो होगा दैट इज 1:2, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टनल losses is mining coefficient is used in the calculation of head loss। ऑप्शन क्या है, फ्रिक्शनल लॉस, loss due to bend, loss due to change of velocity in contraction, loss due to change of velocity in expansion। क्वेश्चन पूछे गए एसएससी 2018 में। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लॉसेस जो है अगर माइनिंग कोएफिशिएंट यूज करें फॉर द कलेक्शन ऑफ हेड में, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज फ्रिक्शनल लॉस, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डायमेंशनलेस पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शंस क्या है, चेंजेस कोएफिशिएंट, स्पेसिफिक वेट, रेनॉल्ट नंबर्स एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2018 में। सो यहाँ पे डायमेंशनलेस पैरामीटर की बात हो रही है। सो जितने भी नंबर्स होते हैं, रेनॉल्ट नंबर, फ्रॉड नंबर, ये सारी चीज क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, डायमेंशनलेस नंबर होते हैं, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expression represent the critical state of flow in non-rectangular channel। so options क्या है, that is yc equal to q square upon g के पावर 1/3, q square g equal to a की पावर a cube upon t, q की पावर 3 upon g equal to a square upon t, q square upon g equal to a upon t cube। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2017 में। सो फॉर द नॉन रेक्टेंगुलर चैनल के लिए जो क्रिटिकल स्टेट के लिए जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज q स्क्वायर अपॉन g इक्वल टू a क्यू अपॉन t, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक एनर्जी फॉर 1 मीटर डेप्थ ऑफ फ्लो हैविंग द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन क्या है, 0.54 1.46 5 7.62। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2017 में। सो स्पेसिफिक एनर्जी पूछा जा रहा है, तो स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल टू y इक्वल स्पेसिफिक एनर्जी दैट इज कैपिटल इक्वल टू y प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g। डेप्थ ऑफ फ्लो कितना गिवन है, 1 मीटर, प्लस वेलोसिटी कितनी गिवन दैट इज 3, तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। सो इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी दैट इज 1.64, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a hydraulic jump if the Froude numbers is equal to 4.5 to 9 then the jump is called as an, options क्या है, oscillating jump, steady jump, strong jump, weak jump। क्वेश्चन पूछा गया ऐसे 2018 में। सो 1 से लेकर फ्रॉड नंबर 1 से लेकर 1.7 तक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अंडुलर जंप, एंड 1.7 से 2.5 के बीच में अगर फ्रॉड नंबर है तो उसको बोला जाता है दैट इज वीक जंप, एंड 2.5 से लेकर 4.5 के बीच क्या है तो उसको बोला जाता है दैट इज, एंड 4.5 से लेकर 9 के बीच में अगर है
फ्रॉड नंबर तो उसको बोला जाता है दैट इज स्टडी जंप, एंड ग्रेटर देन 9 है फ्रॉड नंबर उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग जंप। तो यहाँ पे 4.5 to 9 है, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज स्टडी जंप, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू।